Bismillahirrahmanirrahim. Uh, the topic of my presentation is asthma and COPD. Asthma. Asthma is characterized by chronic airway inflammation, reversible expiratory airflow obstruction, bronchial hyperactivity of both large and small airways. Incidence. It can occur in any age, in any sex. 26 million people are diagnosed with asthma every year. Women are increased risk of death as compared to men when they are suffering from asthma. Types of asthma. There are different types of asthma. Extrinsic asthma, it's allergic, related to external factors. Intrinsic asthma, that is non-allergic. Mixed asthma, that is the features of both extrinsic asthma and intrinsic asthma. Drug-induced asthma. Aspirin and NSAIDs can be the cause of asthma. Exercise-induced asthma and cough variant asthma. Cough variant asthma is common in children. Triggering factors of asthma. Allergens, house dust, mites, pollens. It can be seasonal. Uh, Occupational exposure. For example, fungal spores can be the source of asthma. Hygiene hypothesis. The people which are living in very clean and high-end socio-economic status, they are at high risk of asthma, drug-induced. Aspirin, NSAIDs, and beta blockers can cause asthma. Some of the infections can be a source of asthma, as respiratory syncytial virus and mycoplasma can cause asthma. Stress and exercise induced. Now, pathophysiology of asthma. Uh, Due to risk factors, there is stimulation of immune system. IgE stimulants produce beta lymphocytes. Beta lymphocytes cause mast cell degranulation, which leads to release of inflammatory mediators. For example, histamine, leukotrienes, bradykinins, leukotriene 4, 5, which leads to airway hyperresponsiveness, which leads to mucus secretion inflammation, which then leads to airway remodeling and signs and symptoms of asthma. Clinical manifestations of asthma. Dyspnea, wheeze, cough, chest tightness, expiration may be prolonged, secretion may be white, thick, gelatinous mucus may be present there. Assessment and diagnostic studies. First of all, as we always do, history. In history, uh, we look for any triggering factors, any occupational exposure, uh, and the sign and symptoms, and history for the sign and symptoms. Physical examination, we look for dyspnea, expiratory wheeze, accessory muscle movements, difficulty in talking. Chest X-ray. On chest X-ray, we look for air trapping and hyperinflation. Pulmonary function test. In pulmonary function test, there will be increased residual volume. Total lung capacity will be increased. Force expiratory volume in first second would be reduced less than 70%. FeV1 over FVC ratio would be reduced. ABGs. ABG should be done. ECG may show right heart strain pattern. On PFTs, uh, we can classify asthma into moderate, mild, moderate, marked, and severe. FEV1 of predicted, percentage of predicted, in mild it will be of 65 to 80%. In moderate it will be of 50 to 64%. In marked, FEV1 ratio would be, FEV1 percentage would be 35 to 49%, and in severe FEV1 would be less than 35% of the predicted.
forced expiratory flow. In mild asthma, it would be 65 to 70% of the predicted. In moderate asthma, it would be 45 to 89%, and in marked asthma, it would be 30 to 44%, and in severe, it would be less than 30%. Partial pressure of oxygen, PO2. In mild asthma, it would be greater than 60. In moderate, it would be greater than 60. In marked and severe, it would be less than 60. PCO2 would be less than, in mild asthma, it would be less than 40. In moderate, less than 45. In marked and severe, it would be greater than 50. Management. In management of asthma, we can use anti-inflammatory drugs. For example, corticosteroids can be used, bronchodilators can be used, long-acting beta-2 agonists or anticholinergic agents can be used, methylxanthines can be used, aminophylline and theophylline. Now we come to anesthesia management or anesthesia preoperative assessment. In anesthesia preoperative assessment, first of all, we uh, assess the disease severity. We assess the effectiveness of the current medication, potential need for additional therapy before surgery, and the goal is to formulate a plan to prevent and blunt expiratory flow obstruction. Clinical history. In clinical history, we try to elicit the severity of characteristics of asthma. For example, when it started, age of onset, triggering factors, hospitalization for asthma, frequency of emergency visits and need for intubation and mechanical ventilation, any allergies, cough, sputum characteristics should be notified, current medications which the patient is taking, and any previous anesthetic history. Physical examination. On physical examination, we the anesthetists do general physical examination. We look for any use of accessory muscles of respiration, auscultation. On auscultation, wheeze or crepitations would be present there. Blood eosinophilic count often parallel with degree of airway inflammation. PFTs, pulmonary function test, FEV1, before and after bronchodilator therapy. Risk factors for perioperative complications. The persons with FEV1 less than 70% are at a higher risk, and the persons with the ratio FEV1 to FVC less than 70% of the predictive value are also at a higher risk. Preoperative therapy, what can we do? We can do chest physiotherapy, we can optimize the antibiotics, we can do bronchodilator therapy. Anticholinergics are individualized as only if the very copious secretions are present. Corticosteroids may be useful. ABGs indicated if there is inadequacy of oxygenation or ventilation. Patients should be free of wheezing and should have uh, peak expiratory flow rate greater than 80% or patient's personal best value before surgery. Intraoperative. Airway reflexes must be suppressed adequately. General anesthesia induction. Propofol, etomidate are suitable induction agents. Ketamine produces bronchial smooth muscle relaxation, decreases airway resistance, but can increase airway secretions, can cause tachycardia, hypertension, and increase pulmonary vascular resistance. Sevoflurane provides smoothest inhalational induction. Ventilation. Warm and humidified gases must be used. Airflow obstruction is apparent on capnography as delayed rise of end-tidal CO2. Tidal volume of 6 ml per kg and prolonged expiration may avoid air trapping. If a patient suffers from intraoperative bronchospasm, then the signs we look for are increased peak airflow, peak airway pressure, decreased exhaled tidal volume, slowly rising waveform on capnograph. Other causes of bronchospasm that may be present there are overinflated balloon, bronchial intubation, active expiratory efforts, and obstruction of the tracheal tube. Sorry. Treatment of the intraoperative bronchospasm.
increasing the concentration of volatile agents. Infusion of the low dose epinephrine, IV hydrocortisone can be given. Post operatively, what can we do? Deep extubation, lidocaine can be given 1.5 to 2 milligram per kg can be given. Reversal agents using anticholinesterase should be used with caution. Adequate pain relief should be there. All medication to be prescribed after surgery. Now we come to COPD. Airflow limitation that is not fully reversible. Disease of small and large airways with parenchymal destruction. Two forms of COPD are there: chronic bronchitis and emphysema. Presence of chronic bronchitis now. Presence of productive cough for most of days of 3 consecutive months and for at least 2 consecutive years. Etiology क्या हो सकती है इसकी? Air pollutants हो सकते हैं, occupational exposure हो सकता है, recurrent pulmonary infections हो सकते हैं, and familial factors may be there. Genetic predisposition हो सकती है. Emphysema. Irreversible enlargement of the airways distal to the terminal bronchioles and destruction of the alveolar septa. More frequently related to cigarette smoking, homozygous deficiency of alpha-1 antitrypsin, air trapping, hyperinflation of lungs. Due to high diffusibility of CO2, its elevation is well preserved initially. Acute CO2 retention is a sign of impending respiratory failure. Now, some of the differences between chronic bronchitis and emphysema. Age of onset. In chronic bronchitis is 40 to 45 years of age, and emphysema starts above 50 years. Appearance. Chronic bronchitis, the term widely used is blue blotters, and for emphysema, the term uses pink puffers. Dyspnea. In chronic bronchitis, dyspnea is mild and late. Emphysema, its dyspnea is early and severe. Chronic bronchitis, cough is copious sputum. Emphysema, scanty and late sputum. Infections are common in chronic bronchitis and occasional in emphysema. Respiratory insufficiency, repeated in chronic bronchitis and terminal in emphysema. Cor pulmonale, common with chronic bronchitis. Radiology, prominent vessels, large heart. And on radiology, in emphysema, there is hyperinflation and there is a small heart. Airway resistance is increased in chronic bronchitis, and in emphysema, it's normal or slightly increased. Elastic recoil is normal in chronic bronchitis but low in emphysema. Some of the clinical symptoms in chronic bronchitis and asthma. Dyspnea is more prominent in emphysema or chronic bronchitis. They have productive cough, they have purulent sputum, minimal cough in emphysema. Hemoptysis is present in chronic bronchitis, mild dyspnea initially in chronic bronchitis, peripheral edema due to cor pulmonale present in chronic bronchitis, prolonged expiration, and chronic bronchitis people are usually obese. Complications of chronic bronchitis are secondary polycythemia vera due to hypoxemia, pulmonary hypertension due to reactive vasoconstriction from hypoxemia, cor pulmonale from chronic pulmonary hypertension. Now I come to emphysema: minimal cough, increased minute ventilation, pink skin, pursed lips, breathing, accessory muscle use, cachexia is present there, hyperinflation, barrel chest, decreased breath sounds, tachypnea, complications of pneumothorax due to bullae, and weight loss due to work of breathing. Treatment: stop smoking, short acting bronchodilators when FEV1 is greater than 80%.
Long-acting bronchodilators and corticosteroids are for patients with worsened symptoms. Hypoxemia is treated with supplemental oxygen. Patient with chronic hypoxia, um, oxygen PO2 less than 55 millimeter mercury and pulmonary hypertension require low flow of oxygen, 1 to 2 liter per minute. Oxygen therapy targeted to hemoglobin saturation up to 90%. History. Preoperative management of the patients with COPD. History. Recent changes in this, or it is improved or worsened over the period of time. Characteristics of the sputum, wheezing, present or absent there. Patients with FeV1 less than 50% of predicted value usually have dyspnea on exertion. FeV1 less than 25% have a dyspnea on minimal activity. Pulmonary function test should be assessed. Chest radiograph should be assessed for bulle and changes. Bullous changes must be noted. Smoking should be discontinued for at least 6 to 8 weeks before surgery. Cessation of smoking as little as 24 hours has theoretical benefit of oxygen carrying capacity. Long-acting bronchodilators and mucolytic agents should be continued on the day of surgery. Deep breathing exercises should be there. Incentive spirometry. Patients should be taught about incentive spirometry, postural drainage, and chest percussions. Intraoperative management. Regional anesthesia is preferred. High spinal or epidural anesthesia can decrease lung volumes, restrict the use of accessory muscles. Loss of proprioception from the chest and position, such as lithotomy, may accentuate dyspnea. Pre-oxygenation prior to induction prevents early desaturation. Nitrous should be avoided in patients with bulle and hypertension. Ventilatory settings of the patients with COPD. Expiratory airflow limitations, especially under positive pressure ventilation, may lead to air trapping, dynamic hyperinflation, elevated intrinsic positive and expiratory pressure. Dynamic hyperinflation may lead to volume trauma, allowing more time to exhale, allow permissive hypercapnia, applying low level of extrinsic PEEP and aggressively treating bronchospasm. Extubation of the patient with COPD, educate pain relief, re- reversal of the neuromuscular blockade, absence of the significant bronchospasm, acidosis and secretion should not be present there. Patients with FeV1 less than 50% may require post-operative ventilation, particularly following upper abdominal and thoracic procedures. Thank you. जी, thank you, Ahmad. Good and very concise presentation, and it was very helpful to understand the basics of asthma and COPD and their management for anesthesia purpose. And surely our members have a lot of questions regarding these two conditions, as these two ailments are very common to interact with anesthetics management, and anesthesia experts very routine in their routine practice face these difficulties. So all of you are here to invite for any sort of question. जी हमाद, आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ मुझे तो आवाज आ रही है आपको। जी, अगर किसी का सवाल हो तो वो हैंड रेज करें, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। सवाल कर सकते हैं, कोई ओपिनियन दे सकते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं।
जी, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, चलो फिर मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, आप उसका आंसर कर दें। ठीक है सर। ठीक है अहमद। सर मैंने आपको क्या आंसर करना है? नहीं नहीं, आपने तो नहीं करना, फिर सारे ही उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। उसमें चलें ठीक है सर। ये एक सिनेरियो देते हैं कि एक 19-year-old boy, known case of asthma, was operated for left inguinal hernia and uneventful intraoperative and preoperative and well controlled asthma. Developed severe shortness of breath and bronchospasm in recovery. How will you manage? इस पे कोई बात करना चाहे? ये डॉक्टर अज़का का एक आया हुआ है, चॉइस ऑफ बसर रिलैक्सेंट। इसमें डॉक्टर अज़का, अगर आप अनम्यूट करके स्पेसिफाई कर दें क्वेश्चन। एस्थमा और सीओपीडी। जी, हमारा चॉइस ऑफ मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से होंगे इन एस्थमा पेशेंट? सर अस्थमा में बेसिकली हमने सारे वो मसल रिलैक्सेंस अवॉइड करने हैं जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी का हमें खतरा होगा। नॉर्मली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एट्रोक्यूरियम, उसकी जगह हम बेहतर है कि सिस एट्रोक्यूरियम यूज़ कर लें। ठीक है। और विकोरोनियम दे सकते हैं, मीवाकोरोनियम दे सकते हैं। वो मसल रिलैक्सेंस देने हैं जिनमें आपका मतलब सेंसिटिविटी का, हाइपर सेंसिटिविटी का चांस कम है। बाकी सर आप ऐड कर दें इसमें। जी, ऐसा ही है, ये हिस्टामिन रिलीजिंग जो मसल रिलैक्सेंट है उनको अवॉइड करना है। जैसे हमाद कह जी रहा सर। था, उसमें एट्राक्यूरियम इज रिलेटिवली ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज करता है। ऐसे मीवाक्यूरियम जो है आई थिंक वो ज़्यादा मसल हिस्टामिन रिलीज करता है, उसको भी अवॉइड ही करना चाहिए। इसमें सिस एट्राक्यूरियम इज़ अ ठीक गुड है सर। चॉइस। उसके बाद रॉक्यूरेनियम जो है वो बड़ी अच्छी चॉइस है। ये जो वेगोलिटिक रिस्पांस देते हैं जितने मसल रिलैक्सेंट, पेनकुरेनियम है, दीज आर गुड चॉइसेस। तो विकुरेनियम भी उसमें यूज किया जा सकता है। तो इस टाइम रिलीज जो है उसको अवॉइड करना। और कोई क्वेश्चन किसी का? पोस्ट आप में ब्रोंकोस्पाज्म और एस्थमा के अटैक को कंट्रोल करने की क्या स्ट्रेटजीज होंगी? कोई इस पे कमेंट देना चाहे? कौन से इंडक्शन एजेंट हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए अस्थमा में? एनीवन? जी जवाब साहब, अनम्यूट करें। जी डॉक्टर जवाब। सर अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहले तो आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग पोस्ट ऑपरेटिव हाउ टू प्रिवेंट एक्सपीरिएशन या अटैक ऑफ एस्थमा, सो दैट वुड बी कि आपने पेशेंट को adequately pain relief देना है, make sure there are no secretions in the upper airway that can lead to an aggravation of this asthma attack, and make sure that the oxygen, if they are given, that should be given a humidified oxygen rather than dry oxygen.
जी जवाब भाई, आ रही है आवाज आपको? Yes, sir. ठीक हो गया। दीज आर गुड पॉइंट। उसमें And whenever you are doing a procedure, उसमें if you can avoid general anesthesia and have the regional blocks, so try to give your patient regional blocks. So आप जो general anesthesia की complication सबको bypass कर लेंगे. As you said, it's an inguinal hernia patient being operated. So rather than giving that patient general anesthesia, हम उसको regional anesthesia में भी कर सकते हैं, तो हम ये सारी complications avoid कर लेंगे. बिल्कुल सही। फर्स्ट यही ऑप्शन है कि अगर आप जनरल अवॉइड कर सकते हैं तो जनरल को अवॉइड करें। अगर जनरल देना है तो फिर हिस्टामिन रिलीजिंग जो जो पोटेंशिएट करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म को, उन एजेंट्स को आपने और उन फैक्टर्स को अवॉइड करना है। और नेक्स्ट इज अगर हो जाता है तो फिर आपने उसको ट्रीट करना है विद ब्रोंकोडायलेटर एंड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एजेंट्स। ठीक है। अच्छा, एक ये आईसीयू रिलेटेड क्वेश्चन है कि नॉन कन्वेंशनल मेथड्स कौन कौन से हैं टू ट्रीट सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म? ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। एनीवन वांट टू ऐड? नहीं तो फिर डॉक्टर अली हमारे साथ है, उनसे हम लेते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। जी, कोई आंसर करना चाहे तो मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। कि नॉन कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज टू ट्रीट सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म। ये एक फेवरेट क्वेश्चन भी है इसमें, टेबल वाइवे में या एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछते होते हैं, लास्ट फ्यू क्वेश्चन में ही आ जाता है। जी हमारा, आपने कहीं पढ़ा है ये नॉन कन्वेंशनल स्ट्रेटजी? सर ये नहीं पढ़ा सर मैंने। अच्छा, चलिए, उसमें ये होता है कि एक तो हीलियम हीलियोक्स, हीलियोस जो है उसका यूज जो है इज आल्सो कंसीडर्ड एज नॉन कन्वेंशनल थेरेपी। उससे वो टर्बुलेंट फ्लो को आप लीनियर फ्लो में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा केटामीन का यूज टू ट्रीट द रेजिस्टेंट ब्रोंकोस्पाज्म। और थर्ड वन इज मैग्नीशियम। इन तीन चीज़ों का जो यूज़ है ये नॉन कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज में गिनते हैं। और भी शायद हूँ, अगर किसी के जहन में तो ऐड कर दें। सर केटामीन कैसे यूज करेंगे? एक मिनट, ये जवाब साहब के पास है। जी जवाब साहब, डॉक्टर जवाद। Racemic adrenaline mixture can also be used यस यस, to treat जी रेसमिक मिक्सचर। severe bronchospasm. जी बिल्कुल। And regarding ketamine, as you said, sir, उसमें तो यही है कि because it's a bronchodilator ऐसे and it can be used as an adjunctant to anesthesia because it will give adequate analgesia, ऐसे it will give good anesthesia and also bronchodilation. लेकिन उसके साथ सर एक चीज ये हो जाएगा कि that we have to make sure that because it will cause increased amount of secretions, so it has to be pre-augmented with some anticholinergics. जी डेफिनेट सही। क्लियर हो गया हमाद केटामीन का? जी सर क्लियर हो। जी सर और clear हो। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन के शुरू में कह दिया था कि आईसीयू में, तो इस ट्रीटमेंट का आईसीयू का मतलब ये है कि पेशेंट का एयरवे पहले से ही आपने सिक्योर किया हुआ है, इंटुबेटेड होगा या वेंट पे होगा, तो तभी आप यूज करेंगे। कॉन्शियस पेशेंट में तो केटामीन नहीं यूज कर सकते। वही सर मैं यही पूछना था। ठीक है, और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो इस पे? अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो है ना, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड बुक जो है उसमें ये चैप्टर जो एस्थमा वाला ना, उस पे ये बड़ी जबरदस्त डिबेट दी हुई है। उसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो यही है, हाउ टू ट्रीट द रेजिस्टेंट ब्रोंकोस्पाज्म। तो उसमें ये फिर नॉन कन्वेंशनल थेरेपी पे बात करते हैं। जी डॉक्टर ताहा।
सर मेरा क्वेश्चन है वो जो आपने पहले पूछा था कि वो रिकवरी में जो है अगर कोई पेशेंट है वो स्पैज़मिक है तो उस टाइम वो पेशेंट इंट्यूबेटेड नहीं है, हम उसको एक्सट्यूबेट कर चुके हैं और सर बच्चे बहुत ज्यादा स्पैज़ में जाते हैं अक्सर। तो सर उसमें हम लोग जो वहां पे करते थे उसमें ये था कि हम ऑक्सीजन थेरेपी और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन थोड़ी देर के लिए देते थे। और उसमें से मैंने आपसे ये पूछना है कि हम केटामीन उस टाइम दे सकते हैं पेशेंट को? जी, अगर उसमें आप एयरवे को कर लें सेफ और तो उसमें केटामीन यूज किया जा सकता है, लेकिन वो नॉन कन्वेंशनल में आता है जब रेजिस्टेंट हो। उससे पहले आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं जिसको यूज किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर जवाद ने कहा कि आप एयरवे को क्लियर करें, सिक्रेशन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन दे दें, उसकी पेन रिलीफ कर दें, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करें और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दें। देन आप पेशेंट को नेबुलाइज कर सकते हैं और साथ ही आप कार्टिकोस्टेरॉइड जैसे सोलोकार्टे वगैरह इसका जी सर। भी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट उससे ले सकते हैं। तो नेबुलाइजेशन इज अ वेरी इफेक्टिव। उससे जो है ना बीटा ओके सर। एगोनिस्ट से जो है उससे उसकी नेबुलाइजेशन बड़ी हेल्पफुल है। साथ स्टीराइड की भी नेबुलाइजेशन ऐड की जा सकती है प्रोट्रोपियम से भी। जी सर। अगर इसको नहीं और रिस्पॉन्ड सर करता, मैग्नीशियम सल्फेट? मैग्नीशियम भी नॉन कन्वेंशनल थेरेपी है, इनिशियल में तो नहीं है, इसको यूज करना चाहिए। अगर आपका इन ठीक है सर। नेबुलाइजेशन को जो इसमें बीटा एगोनिस्ट हैं, उसके बाद इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड एंड देन एप्राट्रोपियम, इसको रेजिस्टेंट हो जाता है, पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करता, देन आप एड्रीनालिन जो है उसकी नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर जाता है। और अगर उस पे नहीं है जी तो सर। देन यू यूज द सब कट एड्रीनालिन। उससे ब्रोंकोस्पाज्म का जो स्पेल है वो सीज ऑफ हो जी जाता है। सर। अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो देन आप अगली नॉन कन्वेंशनल थेरेपीज पे जाएं, जिसमें फिर आप मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, जिसमें केटामिन यूज कर सकते हैं। जी तो सर। आईवी यूज कर सकते हैं आप ड्रग्स, जिसमें ब्रिटानिला जैसे अमाइनोफाइलिन है, जी सर। उनको आप यूज जी करते हैं। सर। तो दीज आर स्टेप वाइज आपने चलना है, इनिशियल से चलना है। जी सर। डॉक्टर जवाद आप कुछ ऐड करना चाहें? यस सर, इसके अंदर एक चीज और होता है सर, like if you try to depress the laryngeal reflexes with IV lignocaine at a loading dose of 1 to 1.5 milligram per kg body weight, that is also advisable. आप जिस टाइम पेशेंट को अगर जीए के ऊपर कर रहे हैं तो आप laryngeal reflexes को डिप्रेस करने के लिए अपनी ईटीटी को लिग्नोकेन जेल के साथ लोड करके आप इंट्यूबेट कर सकते हैं। एंड सेम अगर आप पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पेशेंट अपने laryngeal reflexes को डिप्रेस रखे और ट्यूब को टॉलरेट करे, तो you try to give him another loading dose of lignocaine at the end of extubation, अगर आप awake extubation करना चाह रहे हैं, so that you prevent this laryngospasm, triggering factor ना हो, and once there is no triggering factor, patient के bronchospasm या laryngospasm में जाने के chances कम हो जाते हैं। कम तो हो जाए। IV lignocaine is another choice हाँ जी, that we बिल्कुल। use. लिग्नोकेन, लुब्रिकेशन ऑन ईटीटी, आईवी एंड इवन स्प्रे, ये तीनों आप मोडेलिटी यूज कर सकते हैं, ये हेल्प करते हैं। जी, इससे डॉक्टर ताहिर अकबर साहब हैं हमारे साथ, और मैं डॉक्टर ताहिर अकबर को अगर जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि ही इज़ अ वेरी सीनियर और बहुत ही कोऑपरेटिव, एजुकेशन और एकेडमिक्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और रीजनल एनेस्थीसिया में माशाल्लाह लोग जानते होंगे। सर आप कुछ ऐड करना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। वेरी गुड आमिर और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी। तो यार ये चीज़ें जो है ना एग्जाम परस्पेक्टिव में आपके फिंगर टिप्स की होनी चाहिए। जी जी मोस्ट ऑफ यू नो एवरीथिंग। बेसिक चीज़ ये है कन्वेंशनल से स्टार्ट करें और उसके बाद अनकन्वेंशनल चीज़ों पे जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। अगर आप एग्जाम में अनकन्वेंशनल पहले बतानी शुरू कर देंगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपको। सारी चीज़ें आपने मेंशन की। रिकवरी रूम में पैको में स्पेशली कन्वेंशनल उसको आप जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं उससे नेबुलाइज करें। और लाइडोकेन आपने बताया आईवी लाइडोकेन नेबुलाइजेशन भी बड़ी इफेक्टिव चीज़ है। यस अभी कोविड के दौरान भी जो है ना इसका काफ़ी रोल सामने आया है। इट वाज वेरी इफेक्टिव। यस डेफिनेटली। सिर्फ दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा। एक तो ये है कि रिवर्सल एजेंट्स में आपकी क्या चॉइस होगी, क्योंकि जो नियोस्टिग्मीन है वो भी एग्रावेट करेगा ब्रोंकोस्पेज्म। यस
आम तौर पे क्या होता है कि हमारे ज़हन में जो ड्रग अवेलेबल नहीं है या जो प्रैक्टिस हम रूटीन में नहीं करते, उसको वो चीज़ हमारी मेमोरी में नहीं रहती और उसको हम अनइंटेंशनली एग्जाम में भी मेंशन नहीं करते। ये हमारे साथ भी होता है। जैसे हमारे दौर में फेंटानिल नहीं था, हमने कभी मेंशन ही नहीं किया उस चीज़ को। तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने थ्योरी में, वाइवा में ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि सुगामेडेक्स इज एन एक्सीलेंट न्यूरोमस्कुलर जो है रिवर्सल एजेंट है। आप इसमें मेंशन करेंगे कि जो ओबीज पेशेंट हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं, एयरवे डिजीज के पेशेंट हैं, उनमें आप सिलेक्टिवली जो है रकुरोनियम यूज करेंगे और सुगामेडेक्स यूज करेंगे एज रिवर्सल एजेंट। 2 पॉइंट्स इसमें हैं कि एक तो ब्रोंकोस्पेज्म आप अवॉइड करेंगे, दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्पेज्म है साथ रेजिडुअल जो उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक है, तो दैट विल बी अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन कि उसको एयरवे जो मस्कुलर कंट्रोल भी प्रॉपर नहीं है और एयरवे स्पेज्म भी है, तो देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। सेकेंड चीज जो मैं मेंशन करना चाह रहा था रिगार्डिंग रीजनल एनेस्थीसिया, फॉर एग्जांपल शोल्डर सर्जरी है, अपर लिम्ब सर्जरी है, तो उसमें आप अवॉइड कीजिएगा इंटरस्केलिन ब्लॉक। Yes, इंटरस्केलिन ब्लॉक में 100% फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसे। इंटरस्केलिन में 100% इन्वॉल्वमेंट है और सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक में 50% फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल। अब उसका लेवल जो है दैट वुड बी अ डिफरेंट। उसमें आप अल्टरनेटिव ये बता सकते हैं कि जी एक तो लो डोज सुप्राक्लेव दे दें या सेफ्टी है इंफ्राक्लेविकुलर दें। फॉर एग्जांपल शोल्डर सर्जरी है तो उसमें इंटरस्केलिन का अल्टरनेटिव ये है कि आप सुप्रास्केपुलर जो पोस्टीरियर साइड पे शोल्डर के आप देंगे बिल्कुल ऐसे। अब स्केपुलर नॉच में, ऐसे प्लस एक्सिलरी नर्व exactly। उसमें 100% ब्लॉक भी होगा और 100% फ्रेनिक नर्व स्पेयरिंग भी होगी। ये हो जाएगा शोल्डर सर्जरी। अदर देन अपर लिम्ब सर्जरी से ह्यूमरस है आप इंफ्राक्लेविकुलर दे दें और बिलो एल्बो है तो आप एक्सिलरी दे दें। ये मेरे 1-2 पॉइंट्स थे रूटीन। सर वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू। पॉइंट, स्पेशली ये जो सुडामेडेक्स को आपने मेंशन किया, हम पाकिस्तानी कभी भी इसको मेंशन ना करते हुए हम यूज नहीं करते, ये बड़ा वायलेट पॉइंट था कि न्यूस्टिग्मीन इटसेल्फ ट्रिगर करता है। और ये शोल्डर सर्जरी वाला पॉइंट भी सर इधर गुड है जी। कोई और इस पे ऐड करना चाहे या कोई किसी का क्वेश्चन? इसमें कुछ कमेंट्स हैं। रिपीट क्वेश्चन रिगार्डिंग नॉन कन्वेंशनल। जी, नॉन कन्वेंशनल के अंदर वो स्ट्रेटजीज हम बता रहे थे, तरतीब वही रखनी है जो डॉक्टर ताहिर कह रहे थे कि पहले ऑलवेज मेंशन एंड मेक दिस हैबिट टू मेंशन कन्वेंशनल थिंग देन गो टू नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल में हीलियोक्स उसको यूज करते हैं, केटामिन यूज करते हैं, उसके बाद जो है मैग्नीशियम यूज किया जाता है और एड्रीनालिन जो है रेस्पिक एड्रीनालिन, इसका मिक्सचर इनहेलेशनल में यूज किया जाता है, जाइलोकिन इनहेलेशन यूज किया जाता है। तो ये नॉन कन्वेंशनल थेरेपीज हैं टू कंट्रोल दी रेजिस्टेंस ब्रोंकोस्पाज। तो क्लियर हो गया इस पे। डॉक्टर शाहीन अमजद ने ये पूछा था। जी डॉक्टर शाहीन, अगर इसका कोई कंफ्यूजन हो तो आप फर्दर कमेंट ले सकते हैं। जी डॉक्टर जवाद। सर इसमें इंटरेस्टिंग सिनेरियो राइज होता है कि इफ वी हैव patient who's asthmatic and the surgeon says कि जी I want to do a laparoscopic chole, he insists ना. So with the asthmatic patients, the precautions that are needed in laparoscopic surgery, sir. यस, ये एक
अच्छा खासा ट्रैप है, जिसमें जो है ना सर्जन और एनेस्थेटिक के जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो उसमें बेसिक्स ही हैं। इसमें मेजर चीज़ तो यही है कि आपका प्री ऑप उसकी कंट्रोल्ड एस्थमा, क्योंकि इसे इलेक्टिव प्रोसीजर, तो इसमें आपने बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन के ऊपर ही उसको फिट करना। तो उसमें डॉक्टर हमाद ने अपनी स्लाइड में बताया कि FVE1 जो है वो मोर देन 80 होनी चाहिए, तो कंट्रोल्ड हो। उसके बाद आप जो उसके इंट्रा ऑपरेटिवली आपका एम यही है कि आप गैस एक्सचेंज विद इन नॉर्मल लिमिट हो, हाइपरकैप्निया ना हो, हिपोक्सिया ना हो। ठीक है, उसके बाद वही बेसिक आपने जो हिस्टामिन रिलीजिंग एजेंट है उनको अवॉइड करना है इंडक्शन पे भी, और मसल रिलैक्सेंट पे भी गुड पेन रिलीफ। ओपियाइड में जो है जो मॉर्फिन वगैरह तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसमें एनसेड्स अवॉइड करें। पैरासीटामोल आपको बड़ा अच्छा पेन रिलीफ दे देता है, और ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है इस हवाले से। तो And बेसिक sir, we have heard about these laparoscopies can be performed in the subcostal blocks, like subcostal tap block. तो सर उसके अगर आप थोड़ा गाइड कर दें, बिकॉज इफ यू क्रिएट अ नीमोपेरिटोनियम एंड और आपने पेशेंट को सिर्फ सबकॉस्टल ब्लॉक किया हुआ है टैप, तो कैन इट बी परफॉर्म हाँ जी, उसमें विद देखें ये MMA मल्टीमोडल एनाल्जेसिया टेक्निक? मैं डॉक्टर ताहिर से करूंगा रिक्वेस्ट पे इस पे करेंगे, क्योंकि मैंने सब कोस्टल पर लैब कोली नहीं यूज किया। वैसे ओपन के लिए मैंने किया है, उस पे मैं एक दो केसेस आए थे तो मैंने सर्जन को रिक्वेस्ट की कि आप ओपन कर लें, लैब ना करें। जी सर, इस पे भी आपका एक्सपीरियंस हो डॉक्टर ताहिर? इसमें दिया जा सकता है, वही मल्टी मॉडल में आता है। जी एक तो ये ज़हन में रखिएगा, ये जो टैप ब्लॉक्स होते हैं, जो भी इसकी 2-3 फॉर्म्स हैं, वो आपका सुपरफिशियल जो मस्कुलर पेन है वही रिलीव करेगा, विसरल पेन रिलीव नहीं करेगा। जी बिल्कुल। एक तो आप सबकॉस्टल टैप दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे बेहतर ये है कि आप लोकल एनेस्थेटिक और डोज जो है सर्जन को बता के खुद अपने सामने जितनी पोर्ट्स हैं उनको इनफिल्ट्रेट करवा दें। दैट इज मच बेटर देन योर सबकॉस्टल टैप ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि सही। उसमें मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। ऐसे सबकॉस्टल जो है वो अपर वाली पोर्ट्स को कवर कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो है अम्बलाइकल और नीचे वाली वो कवर नहीं होंगी उसमें। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने तो देखा है कि जो अगर पोर्ट्स प्रॉपरली इनफिल्ट्रेट हुई हैं, दे आर इक्वली इफेक्टिव। जी। बाकी अच्छा, जो है FIV और ओरल जो है बाद में मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया उसको दे सकते। उसमें मेरे ख्याल डॉक्टर जवाद का पॉइंट ये था कि क्या बाइलेटरल टैब लगा के जी, नीमोपेरिटोनियम करके ऑपरेट करवाया जा सकता है? नो डॉक्टर नो, नॉट एट ऑल, ये नॉट सवाल, एट ऑल। बिल्कुल यही मेरा भी। जी, ये मैंने अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में देखा कि कुछ लोग कह रहे थे जी आप टैब ब्लॉक देके सिजेरियन भी करवा सकते हैं। हाँ वो ये बात पता है क्या होता है, एक नई इंटरवेंशन आती है ना, तो उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल है, लोग समझते हैं कि आई मीन दिस इज द सोल्यूशन। वो आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 साल बाद पता चलता है नहीं यार, इसकी ये लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल ये आपको सिर्फ मस्कुलर एनाल्जेसिया देते हैं, जितने ऐसे, भी ये ब्लॉक्स हैं। ये सेम चीज है यार। आप देखें टैब ब्लॉक आप क्या कर रहे हो, आप सुपरफिशियल जो इंट्रामस्कुलर नर्व्स जा रही हैं आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, विसरल सप्लाई इज डिफरेंट। तो आप एक न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर आपकी पेरिटोनियम है, आपका उधर मोमेंटम मैनिपुलेशन है, उसमें आपकी विसरल डायसेक्शन है, कॉटरी यूज हो रही है। वो सारी पेन कौन कवर करेगा? जी बिल्कुल। Sir, that can only be used as a post-operative analgesia, यस। these tap यस, blocks. पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, Very यस। right. And sir, in asthmatics, regarding when we create pneumoperitoneum, what would be the effect on capnography? देखिए Because there are कैप्नोग्राफी already तो COPDs हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेनर भी हो सकते हैं, तो इनके अंदर सर कोई स्पेसिफिक है कि at what level of pressures that, like what we do over here in our hospital, हमारी कोशिश यही होती है किसी, we don't allow surgeon to go above 7 to 8 pressures. Normally
दे प्रेफर कि जी 11 या 12 का प्रेशर हम लोग रखें, तो हम उनको ये कहते हैं कि यार ऑलरेडी रीजन बीइंग इनकी FRC इज ऑलरेडी लो, तो हम उनको यही कहते हैं कि डोंट गो फॉर द हाई प्रेशर्स। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट सर? नहीं देखें, वो उसमें तो दोनों चीज़ें इफेक्ट करेंगी ना, आपका प्रेशर है, आपका टाइम ऑफ सर्जरी है कि आपने कितनी टाइम के लिए न्यूमोपेरिटोनियम किया हुआ है, उसके बाद पेशेंट पोजीशन है ड्यूरिंग सर्जरी, हेड डाउन है, उसमें FRC फर्दर डिक्रीज होगी। देखिए उसमें मेरा नहीं ख्याल, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। प्रेशर उसमें इतना ज़्यादा शायद इफेक्ट ना करे जितना टाइम ऑफ सर्जरी है, कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं। अब देखें, एक ऑप्टिमल सर्जिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए दे नीड अ सर्टेन प्रेशर। आपका सिर्फ एक कंसर्न है CO2 वाला, लेकिन सर्जन को जब तक प्रॉपर एनवायरनमेंट अंदर नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूमोपेरिटोनियम नहीं मिलेगी, वो इंस्ट्रूमेंटेशन और सर्जरी नहीं कर सकते अंदर। तो दे हैव टू क्रिएट सर्टेन लिमिट। 14 तक अलाउड है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्जन है जो 20 तक चले जाते हैं, एंड विद वेरी रैपिड प्रेशर, उनको रोकना पड़ता है वहाँ पे। तो उसका यही है कि आप एक प्रॉपर उसको वेंटिलेटरी जो टेक्निक्स हैं कि आप उसको बाद में प्रॉपर पोजीशन करके पीप कितनी रखते हैं, कितनी देर के लिए वेंटिलेट करते हैं, उसको CO2 वॉश आउट कर दें, और उसको प्रॉपर जो है न्यूरोमस्कुलर रिवर्सल, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप हमारे यहाँ वहाँ सुगामेडेक्स अवेलेबल नहीं है। जो रेसिडुअल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग है ना, दैट इज वेरी कॉमन, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी ऑपरेटिंग रूम में नर्व स्टिमुलेटर्स यूज करते हैं, तो उसकी जो रेशो है, टॉप रेशो, वो अगर कभी कैलकुलेट करके देखिएगा कि कितने % पेशेंट जो है उनका रेसिडुअल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट है जब पेशेंट पाकू में जाता है। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो अब आई थिंक कोई ऐसा इशू नहीं है, हो जाता। थैंक यू सर। सर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता था सर, रिगार्डिंग यू सेड के लाइक विद द यूज ऑफ neostigmine for reversal, and if we have used etracurium as a muscle relaxant, तो सर अगर हमारे पास NMT है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, and we have got no fading on train of 4, so we don't have to reverse the patient beyond with neostigmine. मतलब Sagamedex can't be used with etracurium. For Sagamedex you need rocuronium. You can't use Sagamedex with etracurium. Not even with cyst के साथ भी हम नहीं यूज कर सकते, because the class is different. सर इसमें एक और चीज ऐड करनी थी. I wanted to ask you, which is the best mode to ventilate the patient perioperatively? Would you prefer a volume control or pressure control mode? उसमें मोस्टली तो प्रेशर कंट्रोल मोड जो इसमें है ना, न्यूमोपेरिटोनियम और स्पेशली जो पोजीशन है, उसमें प्रेशर कंट्रोल ज्यादा बेहतर रहता है। आंसर यू वुड आल्सो, मतलब हमें प्रेशर कंट्रोल पे ये करने के बाद वी कैन आल्सो एडजस्ट द आई रेशियो ऑफ द पेशेंट, वी कैन प्रोलॉन्ग द from 1:2 to 1:2.5 or even 1:3 to keep the hypercapnic or status of the patient within normal limits. You advise that also? डेफिनेटली अगर देखें COPD और अस्थमा की हिस्ट्री है, तो आपको डेफिनेटली वो रेशियो ज्यादा करनी पड़ेगी। उसमें जवाब, अगर आपके पास एंटाइडल CO2 का है ना मॉनिटर, तो वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि आप उसको ही विद इन नॉर्मल रेंज रखें। जहाँ पे वो लिमिट क्रॉस करने लगे तो फिर आप इंटरवेंशन करें। वो इंटरवेंशन जो है ना, I/E रेशियो भी हो सकती है, वो रेट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, या अगर प्रेशर यूज कर रहे हैं आप कंट्रोल, तो प्रेशर को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही था ना, आई वांटेड के लाइक whenever we create pneumoperitoneum, so the patient plateau pressures they go up. So हम अगर वहाँ पे टारगेट अपना रख रहे हैं कि जी we should be having, patient should not generate more than 30 plateau pressure, वहाँ पे जब pneumoperitoneum goes above pressure, जब surgeon 10 का create कर लेता है, तो we cross 35 36, तो उस टाइम के ऊपर बैरोट्रॉमा वेलोट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो देन वी हैव टू वेंटिलेट पेशेंट विद लेस अमाउंट ऑफ टाइडल एंड विद हाइट रेट, ताकि उसकी मिनट वेंटिलेशन को हम अचीव कर सकें। हाँ जी, उसमें एंड टाइडल CO2 जो मॉनिटरिंग है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट। डन सर, गॉट इट।
थैंक यू सो मच। हमने टाइम भी मेरा पूरा हो गया और बड़ी इस पे हेल्थी डिस्कशन भी होगी। एंड वंस अगेन आई वांट टू थैंक्स डॉक्टर हमाद for this wonderful presentation and very healthy debate, and especially Dr. Tahir Akbar. He has given very valid and important points regarding these two conditions. Here we want to end over today's session. Thank you so much and goodbye everyone.